is where you struggle, right? What about traditional businesses out there, traditional Pakistani businesses who probably haven't figured out data yet? वो कैसे adopt करेंगे AI? अगर आप already manufacturing और tech business में हैं, then you really need to understand what AI can do for you. Yeah. Assalamualaikum, Dr. Mudassir. Welcome to Pace Podcast by Hapari 7. How are you doing? I'm very well, Ali. कैसे हम ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. आप हपरी 7 आए पहली दफ़ा. You got introduced to the concept of AI. How do you feel about it? नहीं माशाल्लाह आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं. ठीक है. आई थिंक आपका जो कोआर्ट चल रहा है उसका प्रोग्राम मैंने भी सुना बैठ के आपसे और अदनान से बाकी लोगों से. आई थिंक you guys doing a great work and I think it's a big opportunity for anybody in UAE who is scaling up, already have some customers, product market fit hopefully, and especially in businesses in Pakistan, right, who wants to grow in the Middle East, especially UAE market. आप लोग, so basically you are the place to be. So well done. Thank you for your endorsement. It's great to have people like you over here. I think it's beneficial for the ecosystem in general, for good people who accomplish something to be a part of such initiatives and help other Pakistani entrepreneurs. For the benefit of our audience, थोड़ा सा कुछ लोग तो आपको जानते होंगे already, माशाल्लाह famous personality है, but still if you could give a brief introduction about yourself. So my name is Dr. Mudassir Ahmed. I'm a supply chain guy. मैंने NED से इंजीनियरिंग करी थी. फिर मैंने स्टूडेंट्स से जाके मास्टर्स किया मैनेजमेंट प्रोडक्शन में स्कॉलरशिप पे. फिर मुझे PhD स्कॉलरशिप मिल गई. वो स्टार्ट किया halfway through company. I found a company called Eton Electric who ended up funding my PhD. So from 2008 until 15, I just did full-time job, PhD, and focus on basically getting myself developed as much as possible. I was a part of the leadership program quite a few times. I've fortunately traveled enough in to a lot of countries in the world because of my job. फिर हुआ ये कि मेरा जो एक ईटन बॉस था, he moved from Eton to Bristol. Eton में I was lucky enough to do a lot of digitalization projects, ERP implementations और tech का हमेशा शौक रहा है. तो फिर I come as a head of planning logistics for Middle East, and then they gave us Pakistan, Afghanistan as well. तो वहाँ 54 countries थी. So learn about the region की क्या nuances हैं, complexities हैं. यहाँ पे अगर hardly there's any manufacturing, but distribution oriented यहाँ पे businesses हैं. So learn a lot, enjoy a lot. I have actually taken a very archaic supply chain. They have to fully digitalize, literally from order entry until the delivery. Everything was available through the platform. Did that. वहाँ पे मुझे फिर कोविड हो गया. कोविड में मैंने फिर जो अपनी ब्लॉगिंग व्लॉगिंग में थोड़ा अपस्केल किया. फिर लोगों ने मुझे कॉन्फ्रेंसेस वगैरह में बुलाना शुरू कर दिया. Right. So I went to Estonia, Ukraine, met a lot of interesting people. मैंने कोविड में courses बना के digital content. Basically, I come up with this concept of digital product as a or digital product which you can sell through Gumroad. वहाँ पे अच्छे पैसे बनाए. फिर जब मेरे I think audience बननी start हो गई, YouTube channel पे लोग follow करना start हो गए. Then I realized there's an opportunity कि supply chain education जो है is very expensive, right? And there's not a lot of people know about it. जो भी लोग supply chain में आते हैं, they are either finance background or engineering background or just good in Excel spreadsheet or good in following SOPs. So all we can give them information which is I don't want to use the word cheap but easily available, right? How you want to उसकी democratization आप कैसे करेंगे? तो I create content myself. I've got a blog which is established blog, SEM Dojo. YouTube channel was already established. So मैं पढ़े लिखे लोगों से बात करनी start करी. उनसे मिलके मैंने content start किया. Then it was basically I started a startup. So I didn't leave my job. Keep growing the audience, right? Because I already have failed startup like 6-7 years ago. तो उसको भूल जाए. तो वहाँ पे पता लग गया कि आप कितनी अच्छी प्रोडक्ट बना लें, कुछ नहीं होने वाला. What you need is the audience and understand the problem of that audience and providing them a value so they can pay you for it. So हमारा जो platform था वो B2C, B2B both था. So right now the current state is 4 साल हो गए इसको करते हुए. We are the world biggest supply chain academy, alhamdulillah. We got 76 courses, 86 in the pipeline. We have created 45 different best practices. We have got AI apps right now. We have, alhamdulillah, 18,000 plus customers, right? About 10% of them are paying customers. We got about 20 plus enterprise customers as well. Amazing. And right now, so literally phase 1 was a blog. We pivoted to the online academy and also the consulting services. Now we are almost entering into the third pivot. I call it SEM Dojo from
1.0 to 2.0, now I call it SM to the 3.0, where we have developed the world's biggest library of supply chain content, right? Because every course, let's call it on average, is 1.5 hour length, have about 7 lessons, and every lesson has a script. So this is basically a consulting knowledge available in text. We have learned how to use that text and train the LLM models, right, to think and act like a consultant. So if you ask a common question, okay, tell me the best demand forecasting strategy, ChatGPT or Gemini will give you an answer. But if you ask our chatbot, it will gonna give you a very qualified answer. We can create any diagnostics. Literally, you can think about any process diagnostic we can do. We can execute workflows through AI, agentic AI, which we are working right now. Yeah. And in fact, you can drag and drop any Excel spreadsheet, and we understand the Excel spreadsheet and can do the analysis. So we're really moving into the agentic and AI space. Amazing. I mean, a lot you have done, a lot you have achieved. Congratulations on that, mashallah. Thank you. I mean, I'm sure you've covered a lot of ground as well globally with 18,000 customers. That journey must have been interesting. You have following probably on a global scale now. So Alhamdulillah, yeah. yeah. I think a few things I would like to pick up on that journey that you had. I think you can add good insights for our audience on some things. One thing that is generally kind of a given right now, especially in the age of AI. AI is here. Every company needs to adopt it. Every company needs to make it usable. You had the benefit of being able to convert all of that data, which was already available, textualize, giving your model context and training it. But what about traditional businesses out there, traditional Pakistani businesses who probably haven't figured out data yet? वो कैसे adopt करेंगे AI? देखिए पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1.0 था कि बेसिकली जो क्वीन विक्टोरिया ने आके बनाया, जी इस यूके ने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, फोर्ड ने स्टार्ट करी, देन इंटरनेट केम इन, right? So that was second industrial revolution. Yeah. We are lucky enough to live right now in the third industrial revolution, right? AI is not a tech which you have a choice to use. You may have or you may not. That is a wrong thought process. AI will be embedded in everything we do in life. In fact, right now, the way you search and search results with Google, 2 साल पहले Google now is It's completely different. Every web business right now, go and check जो भी 2 साल से पुराने या 3 साल तक से पहले एग्जिस्ट करते हैं, उनसे जाके पूछ ले कि गूगल एनालिटिक्स से ज़्यादा मुझे रिजल्ट दिखाते हैं. मैं गारंटी करके बोल सकता हूँ कि सबके गूगल सर्चेस ऑर्गेनिक नीचे आए हैं. Why? Because the AI overview. Yes. It's going to get happen. Now, this whole term of AE, पहले तो लोगों को SEO नहीं समझ में आता था, बड़ी मुश्किल से SEO समझ में आया. Yeah. अब SEO बड़ी मुश्किल से सीखा जी. अब AEO और JEO की बात हो रही है. आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन. लोग इसको कंफ्यूज करते हैं synonymously. Actually, they are not same. They are different. Right? Now, businesses have to worry about how you make the LLMs, i.e. Gemini or Claude, or Perplexity or ChatGPT to recommend your business. Yeah. वो एक अलग साइंस है. ठीक है. अब मैं उस पर करने बैठ जाऊंगा तो वो तो एक अलग वो हो जाएगी. ठीक है. तो in fact, we gone from 0 mentions from ChatGPT to alhamdulillah 7 to we are in top 3 mentions right now in supply chain for our keywords, if you want to call it. It took us 6 months to get there, but we have to understand that. Now, आपका आंसर क्या है कि अगर कोई businesses जो established हैं, if we're not going to start using a basic AI, सिंपल आसान है. अगर आप ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट बिजनेसेस हैं, वो आपकी बुकिंग सर्विसेज होती हैं, जैसा there is a chatbot available who can do it for you. So you can start using off-the-shelf system. You don't need to understand that. There are plenty of them available, right? In fact, you can ask ChatGPT to give you that. So you should start embracing that. अगर आप already manufacturing और tech business में हैं, then you really need to understand what AI can do for you, right? Especially अगर आप कोई बहुत बड़ा manufacturing business है, अगर आप ERP पे आपका डेटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, ठीक है ना? And if you're not using that enterprise data to train your LLMs, let's assume you're on Microsoft platform, if you're not training your Copilot with enterprise data, it's going to give you a Mickey Mouse answer, right? True. It's rubbish, right? True. So the companies who can start training the models and getting the enterprise data ready to train the LLM models to get the right output will significantly go up. इनफैक्ट और ये हमारा पाकिस्तान का डायलेमा नहीं है. मैं यूके में भी एक कंपनी से मिलने, उनके डायरेक्ट CEO से मिला. He was a CEO of one of, let me tell the name, it's no problem. It's a FTSE 100 company called Helma, right? Very established.
उनका क्या करते हैं, वो बिजनेसेस खरीदते हैं. तो इट वाज वन ऑफ द बिजनेसेस विच वर्थ $70-80 million टॉप लाइन. उसके सीईओ से मिला मैं, ठीक है. Just trying to pitch for the data licensing project. Yeah. I asked him point blank question, what's your AI strategy? ठीक है. कह रहे हैं यार वो हम चैटबॉट वगैरह यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने फोरकास्टिंग का कोई सॉफ्टवेयर लिया. मैं कहा जो आप फोरकास्टिंग सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ना उसके अंदर है भी नहीं है, ठीक है. दे हैव नो स्ट्रेटजी, राइट. सो द वे व्हाट आई सजेस्ट इज कि पहला काम, स्टार्ट यूजिंग इट. सो वंस यू स्टार्ट यूजिंग इट, जैसे भी, ठीक है, और यू स्टार्ट लर्निंग दी कि व्हाट इट कैन डू फॉर यू एंड देन यू डेवलप द इंटरेस्ट एंड यू कैन डू मोर. नाउ बोलेंगे यार हमें तो अंग्रेज़ी नहीं आती. अच्छा, पहले जो गूगल का और उसका जो मसले थे ना सारे वेब के, कि अगर वेबसाइट उर्दू में नहीं है तो अंग्रेज़ी में हम यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है. जैसे हमारी अम्मी ने सीख लिया है कि जी उर्दू में व्हाट्सएप पे लिखना जी, जैसे उन्होंने सीख लिया वो दमादम मैसेज कर रही होती है, फॉरवर्ड कर रही होती है, क्योंकि उर्दू में आ गया. ऐसा नहीं कि अंग्रेज़ी नहीं कर सकते, मतलब उनकी अंग्रेज़ी लिखनी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है. अगर आप अभी ChatGPT कोई खोले जिसको उर्दू से टाइप करना आता है, एक चले अंग्रेज़ी सबको नहीं आती ना पाकिस्तान में, उर्दू तो सबको आती है कम से कम, अगर मतलब थोड़ा भी स्कूल प्राइमरी स्कूल का है, टाइपिंग करनी आती है, सीख लें. अगर आप ChatGPT से अभी उर्दू में पूछेंगे ना कोई बात, तो वो आपको उर्दू में जवाब देगा, ठीक है. और इनफैक्ट राइट नाउ मुझे थोड़ा शेर व शायरी का शौक है, ठीक है ना, क्योंकि मेरी अंग्रेजी उर्दू उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरी वोकैबुलरी उर्दू की अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं 20 साल पहले चला गया था. तो मैं आजकल क्या कर रहा हूँ, मैं रोमन में लिखता हूँ और फिर मैं ChatGPT को बोलता हूँ कि उसको उर्दू में कर दो, ठीक है. फिर मैं उर्दू में अपने दोस्तों बहनों यार तुम तो बड़े शायर निकल गए आजकल, ठीक है. तो मैं शायर नहीं बन गया, मेरा नाम है वो मुस्लिम परदेसी कॉमेडी में ऐसी मजाकिया शेर लिखता हूँ, ठीक है. तो द पॉइंट इज इट्स क्रिएटिंग दैट इट्स अ ग्रेट इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर क्रिएटिव बिजनेस. को पाकिस्तान में देखो कुछ किसी के पास टाइम है नहीं है कॉमेडी करने का और क्रिएटिव काम करने का, बहुत टाइम है. हम लोग अगर मीम्स बनाने का कंपटीशन हो फेयर पे तो हम लोग नंबर 1 पे आए, ठीक है ना. कोई दुनिया का कोई वाकया तो होता नहीं है 2 घंटे पहले 2 घंटे बाद उसकी मीम्स होती है, ठीक है ना. पाकिस्तान ने इंडिया से खेलने के लिए अभी मना किया जी, हम खेलेंगे नहीं, उसकी 50 मीम्स मैंने मोबाइल पे पढ़ी है. मैं सोचता हूँ ये वो कौन क्रिएटिव लोग हैं जिनका इतना टाइम है बैठे हुए, ठीक है. तो मैं इसकी एग्जाम्पल आपको ये देता हूँ कि जब ChatGPT आया, आई रिमेंबर इट वॉज November 23, तो आई थिंक तो 2 दिसंबर मैंने कहा हम भी यूज़ करते हैं डाउनलोड करके. तो पहला काम मैंने क्या किया, मैंने ChatGPT को लिखा राइट मी अ रैप सॉन्ग अबाउट सप्लाई चेन. अच्छा, ठीक है, ये स्टोरी ज़बरदस्त है यूज़ केस की. उसने मुझे रिदम में कुछ लिख के दिया. इट वॉज टेक्निकली नॉट करेक्ट, ठीक है, बट इट मेड सेंस. तो मैं इसके 2-3 वर्जन बनाए, तीसरा वर्जन मेक मोर सेंस, ठीक है, लेकिन उसकी फिर भी टेक्निकली उसके अल्फाज सही नहीं आ रहे थे. लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर मैं वो स्ट्रक्चर लूंगा एंड इफ आई चेंज द फ्रेजेस राइट टू मेक इट लुक लाइक अ फ्लो राइट इन एंड इट विल मेक सेंस, ठीक है. उसको मैंने रैप लिया, उसके तकरीबन 8-9 वर्सेस थे. तो मैंने दोस्त को बोला आपने यार इसकी कोई रैप स्टूडियो है क्या, तुझे रैप कहाँ होता है. मैं कहा मैं खुद नहीं कर रहा, मैं फाइवर पे गया, मैंने फाइवर पे सर्च किया कोई रैप आर्टिस्ट, कोई लड़की खड़ी थी, उसको मैंने बोला मेरे पास जो है ये रैप शैप है, ठीक है, तुम उसका मुझे तुम बीट बना के भेज सकती हो. आई आस्क हर बीट राइट, कैरी $50, मैं कहा नो प्रॉब्लम. शी एक्चुअली रिकॉर्डेड दैट एंड सेंड इट टू मी. मैंने बोला सी आई एम रैप आर्टिस्ट, दैट्स आई कैन डू राइट. मैंने बोला जबरदस्त हो गया. कह रही मैं कहा तुम ऐसी बीट डाल दो जो यूट्यूब पे फ्लैग नहीं हो फॉर अ कॉपीराइट. करिए उसके पैसे लगेंगे. मैं कहा यार मैं गरीब बंदा हूँ, स्टार्टअप में कर दो. करिए ओके नो प्रॉब्लम. आई कैन नॉट डू फुल प्रोडक्शन मिक्स लाइक अ प्रोडक्शन क्वालिटी. मैं कहा कुछ नहीं चाहिए कि नहीं मैं फ़ोन पे करके दे दूँगी. सो लिटरली सेंड मी ऑन द रिकॉर्ड ऑन द फोन, सी सेंड टू मी. इट वॉज गुड इनफ फॉर मी बिकॉज आई हैव अ वीडियो एडिटर. उसके बाद मैं कनाडा, मेरा दोस्त था बोल में काम करता था, टीवी प्रोड्यूसर है, कह रहा है जानी तुम आ रहे हो तो इसकी हम वीडियो शूट करते हैं राइट. तो मैंने उस लिटरली वी वेंट टू टोरंटो, वी वर जस्ट वॉकिंग विद द हुडी, आई हैड द फोन कैमरा and we just randomly recording some scene. I went to Karachi, I went to वो नहीं है अपना जहाँ पे पठानों का ट्रक होता है सराब कोट पे. I recorded few scenes there. I went to Dubai, ये जो अपना लास्ट एग्जिट है ना, वहाँ पे बड़े बड़े टायर्स हैं, गाड़ी है. Recorded some scenes there. ठीक है, बर्मिंगम में मेरी बेटी है, उसको थोड़ा रिकॉर्डिंग उसके साथ उसको करके मैंने अपने वीडियो एडिटर पे दे दिया. अभी आप जाके यूट्यूब पे सर्च करें सप्लाई चेन रैप, दैट विल कम एट नंबर 1. इट हैज़ 386,000 व्यूज. Amazing. The point is, it cost me $50 to produce it. So it's all about how you use technology and how creative you are. It's not about money. Very interesting. Talking about startups and startup journey, you work with a lot of startups as well. What would be your advice to them in their journey and scale ups? How can they implement
not just AI, but other kind of tools to really get ये them. बहुत बड़ा टॉपिक है, टाइम कम है, तो मैं अगर गिव यू 2 वेरी स्पेसिफिक एडवाइस बेस्ड ऑन सजेशन. Yeah. हर स्टार्टअप वाले को ऐसा लगता है कि हमारे पास जो है ना जानी चांद पे जाने वाला आइडिया आ गया है, इस पे तो हम मरेंगे मल्टी मिलियनर, हमारी स्टार्टअप को कोई लेने वाला है 20 मिलियन में. वो ये एक बिलीफ होता है उनके अंदर, ठीक है ना. ओके, which is not a bad thing. You need that to be crazy enough to do startup regardless of the age. 100%. Right, okay. So that's fine. But reality is far from that. Right? Reality is far from that regardless how crazy creative idea you have. Now the ideas are everywhere. What differentiate is execution. तो अब execution आ जाते हैं. So let's talk about the startups with no customer. MVP का सबको पता है. लेकिन MVP की जो concept है ना, they don't apply the way it should be applied. Right? You have to have minimum features for people to use it. First of all, you need to have a very good understanding of the problem you're solving. Yeah. क्योंकि कोई भी आपको पैसे देगा ना, सॉफ्टवेयर पे नहीं देगा, यूएक्स पे नहीं देगा, कितना सेक्सी लग रहा है उस पे नहीं देगा, आप कितने बड़े चीते हैं उस पे नहीं देगा, ठीक है ना, आप कितनी मैथमेटिक्स आपकी अच्छी उस पे नहीं देगा, आप कितने बड़े कोडर हैं उस पे नहीं देगा, आप कितने बड़े सेल्स हैं उस पे. वो आपको पैसे जब देगा कि यू आर सॉल्विंग अ जेन्युइन प्रॉब्लम. तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की भी 2 टाइप्स होती है ना, एक होती है मार्केट नीड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एक होती है टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट डेवलपमेंट. राइट? लोग ये समझते हैं कि यार वो ऑलरेडी कुछ अच्छा कर रहा था, हम थोड़े से 3-4 फीचर चेंज कर लेते हैं और ये हम जो है अच्छा कर लेंगे. ये इनोवेशन नहीं है, ये सेटिंग फीचर्स. द रियल प्रोडक्ट इनोवेशन इज व्हाट स्टीव जॉब्स डिड, राइट? दैट nobody knew that you need a phone which has basically iPod music command. That's innovation. Right? What Elon Musk does is innovation. Okay? Now, to answer your question, अगर आप startup है, so you make enough MVP which solving a genuine problem. To solve the genuine problem, you have to talk to the end user and the customer. Right? Okay. जब वो आपको समझ में आ गया, ठीक है, जब वो आपको समझ में आ गया, आपने वो सॉल्व कर दी, आप उसको आप फ्री में भी दे दें, यू क्रिएट दिस प्रोडक्ट मार्केट फिट. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना प्रोडक्ट मार्केट फिट का, इसको अच्छे से पढ़ लो, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप स्टार्टअप को आगे नहीं जा सकते. फॉर दैट रीजन 98% ऑफ द स्टार्टअप फेल्स. अब आप बात कर लेते हैं 2% स्टार्टअप की जो कि स्केल अप पे होती है, तो 2 साल सर्वाइव कर लिया किसी ने. नाउ द स्केल अप इज, अगर कोई बंदा मुझ पे आ जाता है ना, कोई स्टार्टअप डेक दिखाता बोलता है भाई जानी कंपटीशन नहीं है, सिर्फ हम लोग ही हैं, तो मैं अगली स्लाइड पे जाता ही नहीं हूँ. क्योंकि ये हो ही नहीं सकता. ठीक है? अगर कोई मुझे बोल रहा है कि हमारा कोई किसी भी पिच डेक में किसी ने बोला कि हमारा कंपटीशन कोई नहीं है, प्रेजेंटेशन फिनिश फॉर मी, बिकॉज यू आर डिल्यूजनल. राइट? एंड आई डोंट वांट टू वर्क विद डिल्यूजनल पीपल. राइट? अगर आप भी बोले हाँ हमारे 4 कंपटीशन है, उनका मार्केट ओरिएंटेशन ये है, ये ऑलरेडी सक्सेसफुल, उनके ये फीचर है, हमारी डिफरेंशिएशन ये है. And differentiation could not be just feature differentiation, could be your service differentiation, price differentiation, experience, whatever differentiation. It's fair. At least you need to know your differentiation, right? Yeah. Okay. वो आपने देख ली, उसके बाद आपने स्केल अप का सीन ये है कि you get to few customers but you're not growing. आपके इनसे बात से भाई से बात कर रहे थे, बोला कि UX ऑनबोर्डिंग के मसले हैं, या आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी खराब है, ठीक है ना, या आपके पास सेल्स के बंदे अच्छे नहीं है, या सेल्स साइकिल आपकी बहुत लॉन्ग है, ठीक है ना, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दैट. राइट? तो देयर यू नीड सम एडवाइजरी एक्सपीरियंस. एक बुक है, उसका नाम है क्रॉसिंग द chasm. राइट? वेरी गुड बुक. उसमें होता है कि आप यहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, बट टू गेट दिस हॉकी स्टिक इफेक्ट, दिस इज वेयर यू स्ट्रगल. राइट? अब क्रॉसिंग द chasm में होता ये है कि यू हैव टू एनालाइज कि आपकी आप एंटरप्राइज में, B2C में, B2B में. अगर आप B2C में है ना, देन इट्स ऑल अबाउट वॉल्यूम, या वॉल्यूम गेम है, ठीक है. देन इज अ मार्केटिंग ब्रांडिंग गेम. राइट? दिस ऑल अबाउट मार्केटिंग ब्रांडिंग. उसकी जो भी आप स्ट्रेटजीज हैं आप वो अपनाएं, डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, AEO, SEO. देन यू शुड बी अ मार्केटिंग इंजन बेसिकली. अगर आप एंटरप्राइज में ना, देन इज अ लॉन्ग लीड टाइम साइकिल. ठीक है? एंटरप्राइज में देन आपकी वर्टिकल स्पेसिफिक नॉलेज और वर्टिकल स्पेसिफिक प्रॉब्लम और कस्टमाइजेशन शार्प होनी चाहिए. क्योंकि एंटरप्राइज का सीन ये है कि लोग कहते हैं हम जी एंटरप्राइज में पैसे बहुत हैं. दैट इज करेक्ट, एंटरप्राइज में पैसे बहुत हैं, लेकिन अगर आप मेडिकल डिवाइसेस बेच रहे हैं, आप मेरी तरह सप्लाई चेन का AI का सॉफ्टवेयर बेच रहे हैं, ठीक है ना, आप जो है अपने ऑफिस के इक्विपमेंट बेच रहे हैं, भाई उसका प्रोसेस लंबा है. आप जाते हैं, आप अपने IPC आइडियल पर्सोना
ICP से मिलते हैं, आइडियल कस्टमर पर्सोना से, उसको रीच आउट करेंगे, आप उसको फिर डेमो देंगे, फिर वो अच्छा मैं अपने बॉस से बात करता हूँ, फिर बोलेगा मुझे अपना कोटेशन भेजो, फिर कोटेशन जाएगा वो CFO के पास, वो बोलेगा अच्छा आपने कितने और लोगों से ली, हमने तो एक से ली, 5 और लेकर आओ, मैं एक को क्यों दूँ, तुम पैसे खा रहे हो उसके अंदर, ठीक है ना, ग्लोबल मसला है जी। ये। फिर वो कहीं CEO के पास जाता है, फिर CEO बोलेगा अच्छा बजट है हमारे पास, बोलेंगे बजट तो नहीं है, अच्छा फिर नेक्स्ट बजट में साल कर दो, जितनी आपने काम किया वो तेल लेने, ठीक है। So you really need to understand that buying process and how you can solve it, and then who can help you with, and networking यहाँ पे बहुत काम आती है। वेरी गुड पॉइंट, सब बिल्कुल ठीक है। एक और चीज़ जो बड़ा चेंज हो रही है वेरी क्विकली, एंड विल एंड विद दैट प्रोबब्ली द लास्ट पार्ट इज, यू नो, दे यूज्ड टू बी, स्टार्टअप्स यूज्ड टू हैव मोट, यू नो, पहले आप मोट डिफाइन कर दें ऑडियंस के लिए। एक्चुअली ये रिसेंटली बहुत सारी टर्म्स आजकल चल रही हैं, ठीक है। ये अभी रिसेंट इन्वेंशन है मोड का, मैं आजकल बड़ा सुन रहा हूँ कि दिस इज अवर मोड, ठीक है। इसका मैंने गूगल भी किया था एंड आई डिडंट गेट इट, राइट। आई थिंक मोड इज अ मोर, आजकल जो वो कहते हैं ना जेन एक्स की जो लैंग्वेज है, वाइब ऑरा ये सब वाली, ठीक है ना, तो ये उसकी इन्वेंशन है, ठीक है। मोड इज अनदर वे ऑफ सेइंग व्हाट इज अवर USP और डिफरेंशिएशन, राइट। सो मोड आप बोल लो, बट एसेंशियली यू आर व्हाट वी एसेंशियली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what's your unique selling point and what's your differentiation. But there is no moat, right? क्योंकि हर कोई भी आके अब कोडिंग रही नहीं, it's all automated. So how can a startup stay relevant? और क्या ये startups खत्म होने वाले हैं, हर कोई अपने जो काम करना है वो खुद ही अपनी एप्लीकेशन में आके करे? Maybe we're going to that direction. I think that is where it will happen. You should become इनफैक्ट मेरे CTO आसिफ, मैं उससे भी बात करता हूँ, वो पहले ना मुझे बहुत मामू बनाता था, कोडिंग में इतना टाइम लगता है, मैं उसकी QA कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वर्क फ्लो चल रहा है, मैं सुनता रहता था, ठीक है। मुझे कोडिंग, मैं बेसिकली प्रोडक्ट टेक समझ में आता है, आई कैन नॉट कोड, आई कैन जस्ट अबाउट अंडरस्टैंड पाइथन कोड, राइट, ओके। और मुझे PHP थोड़ा कोड समझ में आता है, मैं उसको चेक करता था, और फिर मैं कहता था भाई ये 3 हफ्ते की लो। अब क्या है, वो आइडिया, प्रोडक्ट का तो बंदा मैं हूँ, आइडियाज़ का बंदा मैं हूँ, लाता हूँ। तो इससे पहले कि मैं उनको प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट देता हूँ, और फिर मैं उनको ऑलरेडी ChatGPT से या सोनेट से आके कोड भी दे देता हूँ मिला के कि आपने इसको बिठाना है खाली। अच्छा, फिर वो मुझे डिले करते थे कि यार वो मुझे सिर्फ भाई वो UX UFI ग्राफिक्स का बंदा, डिजाइन, लवेबल ने आके उसको भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब मैं लवेबल में जाके फुल वायर फ्रेम उनको बना के देता हूँ, भाई कुछ नहीं करना, आपने ये कोड लेना है, ये उसका HTML है, ये React की लाइब्रेरी है, ये लवेबल का उसका डिजाइन है, आपने बिठाना है उसको। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, मैं बच्चा करके बताता हूँ, दिन नहीं बता, कल आएगा। ये जो बात एंड पे की ना, बच्चा है, आई थिंक ये बच्चों का ज़माना आने वाला है, बिकॉज वो दिन में 10 कंपनी बना के शुरू करेंगे, 9 खत्म हो जाएंगे। इट्स अ गेम। इनफैक्ट एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि ईमेल मार्केटिंग, कोल्ड ईमेल, तो हम पहले लोगों से भिजवाते थे, फिर हम आप कोई भी मेल चिम टाइप या मेलर लाइट टाइप के आप करते हैं, और वो फिर उनको जो ईमेल कंपनी उनकी IPs को ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया। नाउ एक मैंने इजिप्ट में बच्चा हायर किया, ठीक है, वो उसके साथ मैं कोरोना काम कर रहा था, ही जस्ट लर्न अबाउट हाउ टू क्रिएट ऑटोमेशन ऑफ एनी सॉर्ट। तो उससे बैठ के हमने जो ऑटोमेशन बनवा ली है, यूजिंग माई ईमेल और वन ऑफ माई सेल्स गाइज ईमेल, we can send emails to 30, 40, 50 people and then follow it up as well. And I have already seen results of that. ठीक है, कि हम उसकी फुल ऑटोमेशन बना ली है, पहली ईमेल भेजी कि हमें नेटवर्किंग करनी है, जैसा हम मेरे साथ कर रहे हैं। मेरी SCM पे दी सप्लाई चेन शो बड़ी एस्टेब्लिश पॉडकास्ट है सप्लाई चेन में। हम VP किसी GM को सप्लाई चेन को फोन करेंगे ना, या इवन ईमेल भी करेंगे, वो बोलेगा भाई हटा कौन है। उसको आप ये बोलेंगे कि जी डॉक्टर मुदस्सिर आपको इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, उनके 134,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उनके 110,000 फॉलोअर्स हैं, आप आएंगे अपनी नॉलेज शेयर करें। वो कहते हैं ना मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, हम उससे खेल रहे हैं, ठीक है। तो हाँ जी, अब हम उस ऑटोमेशन से भेजते हैं ना, अब सप्लाई चेन के लीडर्स बिजी हैं। अब होता क्या था, वो ईमेल चलेगी नीचे, फिर उसी पे हमने ऑटोमेशन के 3 दिन बाद दोबारा रिमाइंडर भेजा, फिर वो नीचे चला गया। जब तीसरा भेजते ना, फिर बंदा ग्रो नहीं कर पाता। तो हमारा रिस्पॉन्स रेट गॉन फ्रॉम 2.5% टू 23% राइट नाउ। अमेजिंग। सो राइट नाउ मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं अपने शेड्यूल कर सकूं उनके साथ। द पॉइंट इज, दिस इज द गेम वेयर ऑल द आइडियाज आर देयर। इनफैक्ट ये मैं अपना भाषण नहीं बचूंगा क्योंकि मैंने भी वाई कॉम्बिनेटर की वीडियो से सीखा है, लेकिन द पॉइंट इज, इट्स अ ग्रेट चांस राइट नाउ that a 10 smart people company can create $1 billion startup. The best example of that is Lovable. What they build is not technically complicated. You can build it yourself. वो 30 लोग हैं इस वक्त स्टॉकहोम में, वर्थ $2.4 billion बस। Anyways, बल्कि आखिरी बात इसमें ये बोलूँगा कि पाकिस्तान में हम लोग एक चीज़ में जीते हैं,
ठीक है, हम लोग हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के चैंपियन, बिल्कुल. ठीक है. इनफैक्ट पहले रिवर्स इंजीनियरिंग के रिसोर्सेज और थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चाहिए होता था. आप बैंक ऑन योर स्ट्रेंथ, रिवर्स इंजीनियरिंग लगाएं, ये जो एआई के अवेलेबल टूल्स हैं इसको अप्लाई करें. अगर 5 आइडियाज़ पे अप्लाई करेंगे ना, एक तो लगेगा, Yes. माँ की दुआ से. Yes. No, and I think we'll see that coming. It's coming up very quickly. Thank you so much for your time, Thank sir. you for having बहुत me. मजा आया, and hopefully we'll have you again sometime. Hopefully, yes. And you know, we hope you stay connected, and you best of luck to you on your ventures. Thank you. You know, may God give you success, and you know, you're a shining example for our community over here, and you know, we hope to see more of those. Thank you. Thank you very much. Thanks for having me. I think keep up the good work. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.